وزیر اعظم تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. I thought that we'll have to pump in millions of dollars before these dollars could come in. But this shows your talent and your innovative capacities, which simply need to be encouraged. And I think there will be sea of change. And I'm very impressed to meet all of you today. Heartfelt congratulations. And I just want to share with you that nothing is more important for me and keeping me busy than not only to address our gender discrimination. In Saudi Arabia, you all know that in shopping malls, in business houses, in universities, and all other places, 40% workforce come from female segment of Saudi Arabia. Pakistan is blessed with huge youth resource by Allah Almighty, spanning from 15 years to 30 years into millions of boys and girls. This is a challenge for us as well as a great opportunity. Let's decide today that this, mashallah, youthful population, highly talented, we will be able to convert them into a great asset of Pakistan. And I want to assure you, you want to say something? Yes, please. Yeah. All right. Thank you very much. So I am completely committed and resolved to to empower our youth with modern techniques of technology and provide you with a latest vocational training, and then hope and expect from you that you will be entrepreneurs in Pakistan. You will open offices here in Karachi, Lahore, all over the country. Open offices in Saudi Arabia, in Riyadh, and earn millions of dollars for Pakistan. And then this will become the biggest foreign exchange earner for Pakistan. That's my biggest hope, and that's my challenge. And inshallah, I will make sure that we will commit all investments required for you to become bread earners of your families and a great source of foreign exchange for Pakistan. In that, Shahza Khwaja and her team is fully dedicated. I just had a meeting in terms of how to promote fintech. I don't want to give example of a neighboring country, but you know what I'm saying and what I mean. They have really championed fintech in their country. Not only that, in Gulf states, fintech is a buzzword. And imagine how it has contributed to promoting their GDP. I mean, they've saved time, and time is money. Within minutes, they open their accounts, business transactions take place, and there is no delay, and there is no corruption, and there is no hand trying to impede this kind of technology. So I think when we talk of fintech,
when we talk of IT, when we talk of AI, robots, this is not now technology of future. It is today's technology which will lead us into a very bright future. So I think I would like to appreciate all of you, those who have been given these certificates. I think tomorrow and day after, in weeks and months, we will distribute these certificates in thousands and hundreds and thousands, and that's our aim, and that's our motto. Let's hope that together we will turn this into a great opportunity. God bless you. Allah be with you. Pakistan Zindabad. اور آئی ٹی کے شعبے میں خواتین کی خدمات کی پذیرائی کے عالمی دن کی تقریب، وزیر اعظم شہباز شریف تقریب سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا ہزاروں ڈالرز کمانے والی بچیوں سے مل کر خوشی ہوئی. خبر آپ کو دیں گے، آرمی چیف کی جانب سے شہید کسٹمز حکام کو بھرپور خراج عقیدت. خیبر پختونخوا میں 2 مختلف واقعات میں 8 کسٹم حکام کی شہادتیں. سینئر فوجی کمانڈرز کی شہداء کے گھروں میں آمد، اہل خانہ سے اظہار یکجہتی. شہداء کے اہل خانہ کا فوج کے اظہار یکجہتی پر اظہار تشکر. شہداء اور غازی ہمارا فخر ہیں. تمام پاکستانی شہداء اور غازیوں کا مکمل احترام کرتے ہیں. لیک الرحمان سے مزید اس پر بات کریں گے. لیک بتائیے گا اس بارے میں. جی خالد، خیبر پختونخوا کے ضلع ڈیرہ اسماعیل خان میں 2 مختلف واقعات کے دوران 8 کسٹمز اہلکار شہید ہوئے تھے. ان غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف جنگ میں ان شہداء کی بے مثال قربانیوں کے اعتراف میں پاک فوج کے سینئر کمانڈروں نے شہداء کے گھروں میں جا کر ان کے اہل خانہ سے ملاقات کی اور شہداء کو بھرپور خراج تحسین پیش کیا، جس پر شہداء کے اہل خانہ نے اس حمایت اور تعظیم پر پاک فوج سے اظہار تشکر کیا. ترجمان کے مطابق شہداء اور غازی ہمارا فخر ہے، یہ ان کا کہنا تھا، اور ان کی جانب سے کہا گیا کہ ہر پاکستانی پر ان شہداء کی عزت و تکریم لازم ہے، اور یہ کبھی بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ جس امن و آزادی سے آج ہم سب رہ رہے ہیں وہ ان بہادر جوانوں کی لازوال قربانیوں کی مرہون منت ہے. بحیثیت قوم شہداء کے خاندانوں کو سلام پیش کرتے ہیں جنہوں نے پاکستان کے لیے اپنے پیاروں کی قربانیاں دی. جی خالد. شکریہ لیک الرحمان. اور خبر دیں گے آپ کو، پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی انسانی حقوق سے متعلق رپورٹ مسترد کر دی ہے. راجہ محسن اعجاز سے مزید تفصیلات جانتے ہیں. بتائیے راجہ محسن، کیا موقف اپنایا گیا پاکستان کی جانب سے؟ دیکھیے، پاکستان نے امریکی محکمہ خارجہ کی طرف سے جاری کردہ انسانی حقوق 2023 کنٹری رپورٹ کو واضح طور پر مسترد کیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ ممتاز زہرا بلوچ کی جانب سے کہ رپورٹ کے مندرجات غیر منصفانہ ہیں اور اس کے مندرجات غلط معلومات پر مبنی اور زمینی حقائق سے بالکل ہٹ کر ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کی اس طرح کی غیر منقولہ رپورٹس کی جو تیاری ہوتی ہے وہ اس میں جو ہے وہ معلومیت کا فقدان ہے، اور اس سال کی رپورٹ میں ایک بار پھر انسانی حقوق کی بین الاقوامی ایجنڈے کی معلومیت کی کمی اور سیاست واضح طور پر اس میں نمایاں ہے. یہ رپورٹ واضح طور پر دوہرے معیار کو ظاہر کرتی ہے، اور یہ انتہائی تشویشناک ہے کہ رپورٹ میں غزہ اور بھارتی مقبوضہ جموں کشمیر میں انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزیوں کو یا تو نظر انداز کیا گیا یا انتہائی کم اہمیت دی گئی. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ صرف سیاسی طور پر یہ محرک رپورٹ میں غزہ کی تشویشناک صورتحال اور انسانی امداد سمیت ہتھیاروں اور 33,000 سے زائد شہریوں کے قتل عام کو مکمل طور پر نظر انداز کیا گیا ہے. غزہ میں جاری نسل کشی پر امریکہ کی خاموشی انسانی حقوق سے متعلق نام نہاد کنٹری رپورٹ کے پیچھے بیان کردہ جو مقاصد ہیں اس کے خلاف ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے ترجمان دفتر خارجہ کی جانب سے کہ پاکستان اپنے آئینی فریم ورک اور جمہوری اخلاقیات کے مطابق جو ہے وہ جو انسانی حقوق کے حوالے سے اپنے عزم پر ثابت قدم ہے. اگر امریکہ کو اس عمل میں شامل ہونا ضروری ہے تو امریکی محکمہ خارجہ سے یہ توقع کرتے ہیں کہ وہ پیچیدہ مسائل کا جائزہ لینے کے بعد کم از کم جو ہے وہ مستعدی سے کام لے. اور اس کے ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ ایسی رپورٹ کو حتمی شکل دیتے ہوئے غیر جانبداری اور ذمہ داری کا مظاہرہ کرے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ امریکی محکمہ خارجہ کو ایسے تمام حالات کے بارے میں سچ بولنے کے لیے مطلوبہ اخلاقی جرأت کا مظاہرہ کرنا چاہیے. امریکی محکمہ خارجہ کو انسانی حقوق کی سنگین خلاف ورزی اور مظالم کے خاتمے کے لیے بین الاقوامی کوششوں کی حمایت میں تعمیری کردار بھی ادا کرنا چاہیے. اپڈیٹ کرنے کے لیے شکریہ راجہ محسن اعجاز. عدلیہ میں مداخلت کے واقعات میرے چیف جسٹس بننے سے پہلے کے ہیں. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کا سندھ ہائی کورٹ بار ایسوسی ایشن کے زہرانے سے خطاب. کہا جب سے چیف جسٹس بنا ہوں ہائی کورٹ کے ایک بھی جج نے کام میں مداخلت کی شکایت نہیں کی. اگر مداخلت کی بھی جاتی رہی ہے تو وہ مجھے رپورٹ نہیں کی گئی.
یہ یاد دہانی کرانے کی بات ہے کہ کام میں مداخلت قابل قبول نہیں۔ Was made of the support that the High Court Bar Association extends to the 6 judges of the Islamabad High Court who had written to me as well. I thank them on their behalf, but I would like to say one thing. Since I've been Chief Justice, I have not received a single complaint from any High Court judge that there has been interference in their work. Now, if there is been interference in their work, it has not been reported to me. And all the incidents that were mentioned were before my watch, before I took the oath as Chief Justice. This is a thing to bear in mind because interference is not acceptable. سپریم کورٹ نے کراچی میں تمام عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم دے دیا۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، گورنر ہاؤس، وزیر اعلیٰ ہاؤس اور دیگر ادارے سب نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ 3 دن کے اندر قبضے ختم کریں۔ متعلقہ ادارے اس کا خرچ بھی مجاز افسر کی جیب سے لیں۔ سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بند نہ کریں۔ سپریم کورٹ کا تمام سرکاری اور نجی عمارتوں کے باہر سے رکاوٹیں ہٹانے کا حکم۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، گورنر ہاؤس اور وزیر اعلیٰ ہاؤس کے سامنے سے تجاوزات بھی ہٹائی جائیں۔ اتنا ڈر لگتا ہے تو ریموٹ ایریا میں جا کر بیٹھ جائیں۔ سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں KCR منصوبے کے متاثرین کی درخواست پر سماعت کے دوران چیف جسٹس فائز عیسیٰ نے ریمارکس دیے، چھوٹے لوگوں کے گھر توڑ دیے، سرکاری اداروں کے سامنے سے بھی تجاوزات ہٹائیں۔ حکم دیا 3 دن کے اندر وفاقی، صوبائی، مقامی حکومتیں اور ادارے اپنے قبض سے ختم کریں۔ تمام انکروچمنٹ متعلقہ ادارے مسمار کر دیں۔ اس کا خرچ بھی مجاز افسر کی جیب سے لیا جائے۔ چیف جسٹس نے ایڈوکیٹ جنرل سے مخاطب ہو کر کہا، دیکھتے نہیں گورنر ہاؤس، چیف منسٹر ہاؤس اور دیگر ادارے سب نے فٹ پاتھوں پر قبضہ کر رکھا ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل بولے، سیکیورٹی ایشوز ہیں، بم حملے ہوئے ہیں۔ چیف جسٹس نے ریمارکس دیے، عوام پر حملے ہوں اور آپ محفوظ رہیں تو چلے جائیں کہیں اور، خالی کر دیں یہ جگہ، سیکیورٹی کے نام پر سڑکوں کو بند نہ کریں۔ چیف جسٹس نے کہا، میرے آنے سے پہلے سپریم کورٹ کے باہر بھی سڑک بند تھی، میں نے کھول دی، میں نے تو منع کر دیا، میرے لیے روٹ نہ لگائیں۔ IG کو کہا ہے اب روٹ لگائیں گے تو توہین عدالت کا نوٹس کریں گے۔ تھوڑی سی زندگی ہے، کیا طریقہ ہے، VIP بنے پھرتے رہیں۔ دوران سماعت وکیل محمود اختر نقوی نے چیف جسٹس سے استدعا کی کہ کراچی بدامنی کیس بھی اٹھا لیجئے پلیز۔ چیف جسٹس نے کہا، ہم اس طرح اٹھانے کا کام نہیں کرتے، آہستہ آہستہ دوسرے مقدمات بھی سنیں گے۔ چیف جسٹس نے سوکھے درختوں کی جگہ نئے درخت لگانے کی ہدایت بھی کی۔ سپریم کورٹ کا نسلہ ٹاور کی زمین نیلام کر کے متاثرین کو معاوضہ دینے کا حکم۔ تجوری ہائٹس متاثرین کے کیس میں چیف جسٹس نے استفسار کیا، اس کا مالک کون ہے؟ عابد زبیری نے بتایا، میں اس میں وکیل نہیں، یہ پرانا معاملہ ہے، مجھے اس کا علم نہیں۔ عدالت نے کہا، تجوری ہائٹس کے لیے ہم کس کو نوٹس کریں؟ آئندہ سماعت پر بلڈر کا نام بتائیں۔ عدالت نے نالہ متاثرین کو 1 ماہ کے اندر رجسٹر کرانے کی ہدایت کر دی۔ نسلہ ٹاور کی زمین بیچ کر الاٹیز کو معاوضہ دیا جائے۔ گنجر نالہ، اورنگی نالہ اور محمود آباد نالہ کے جو متاثرین رہ گئے ہیں وہ خود کو 1 ماہ میں رجسٹر کرا لیں۔ تجوری ہائٹس کس کا ہے؟ آئندہ سماعت پر نام بتائیں۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی کراچی رجسٹری میں سماعت، ریمارکس دیے، عدالتی فیصلے کے مطابق 3 ماہ میں نسلہ ٹاور کے مالک کو رہائشیوں کو رقم واپس کرنا تھی۔ 240 گز کا پلاٹ نیلام کر کے رقم متاثرین کو دی جائے۔ عدالت نے سندھی مسلم سوسائٹی کو نوٹس جاری کر دیا، آئندہ سماعت پر رپورٹ جمع کرانے کی ہدایت کر دی۔ چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے استفسار کیا، تجوری ہائٹس کس کا ہے؟ اگلی سماعت پر بلڈر کا نام بتایا جائے۔ عدالت نے کہا، متاثرین کو پیسے دیں، فیصلے کو 3 سال ہو گئے، کیا توہین عدالت کا نوٹس بھیجیں؟ بلڈر کے وکیل نے کہا، متاثرین کو معاوضہ ادا کیا جا چکا، جو رہ گئے انہیں بھی دے رہے ہیں۔
नजरसानी की दरख्वास्त दायर कर रखी है। चीफ जस्टिस ने कहा मुआवजा दे रहे हैं तो दरख्वास्त कैसे काबिल समात है। एडवोकेट जनरल सिंध ने अदालत को बताया 6,932 नाला मुतासरीन हैं। चीफ जस्टिस ने पूछा क्या नाला मुतासरीन की तामीरात कानूनी थी। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया तामीरात गैर कानूनी थी, लेकिन हम प्लॉट देने के लिए तैयार हैं। ये पैसे अरबों में बनते हैं। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया इतने पैसे हैं आपके पास। एडवोकेट जनरल ने जवाब दिया पहले नहीं थे, अब हो गए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए किसी नाला मुतासिर का नाम फहरिस्त में रह गया तो 1 माह में कमिश्नर कराची के फोकल पर्सन से रुजू करें और खुद को रजिस्टर कराएं। तिजोरी हाइट्स का गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी या उनकी अहलिया से कोई ताल्लुक नहीं। तर्जुमान गवर्नर सिंध का कहना है तिजोरी हाइट्स को गवर्नर सिंध से मुंसलिक करने की खबरें बेबुनियाद हैं। बेबुनियाद खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वक्त हुआ एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। किसी के खिलाफ फैसला करना हो तो दिल पर पत्थर रख कर करती हूँ। मेरे दिल में इंतकाम का जज्बा नहीं, लेकिन मुझे इंसाफ करना है। लाहौर में वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने पुलिस ट्रेनिंग कॉलेज चौहंग के पासिंग आउट परेड से खिताब करते हुए कहा कि मुझे आग का दरिया अबूर करके यहाँ तक पहुँचना पड़ा। अच्छा हुआ मेरी ट्रेनिंग हुई। आज कोई नहीं कह सकता कि ये इसलिए यहाँ है कि इनका बाप वज़ीर आज़म था। मिनिस्टर की कुर्सी पे बैठ के जब मुझे किसी के खिलाफ फैसला करना पड़ता है तो वो मैं अपने दिल पे पत्थर रख कर करती हूँ, क्योंकि मेरे दिल में इंतकाम का और ये जज्बा नहीं। सबकी जिम्मेदारी है कि इंसाफ से काम ले, मजलूम की दाद रसी करे और जो जालिम है उसको उसके अंजाम तक पहुँचाए। जालिम के लिए आपके दिल में कोई जगह नहीं होनी। जालिम को उसकी सजा मिलना ये सबसे ज्यादा जरूरी, और मेरे लिए भी एक मुश्किल फैसला होता। मुझे आग के दरिया से गुजर कर यहाँ पर पहुँचना पड़ा। मुझे आज कोई ये नहीं कह सकता कि यहाँ पर इसलिए बैठी कि इसका बाप प्राइम मिनिस्टर। हुकूमत में आवे का आवा बिगड़ा हुआ है। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब का असेंबली में खिताब, कहा गैर संजीदगी का ये आलम है कि मरियम नवाज बच्चों की तरह पुलिस यूनिफॉर्म पहनकर आ गईं। हुक्मरान ऐवान में फॉर्म 47 की बैसाखियों पर आ ही गए हैं तो कुछ काम कर लें। उमर अयूब ने शहबाज शरीफ को किराए का वजीर आजम बोल दिया, कहा उनकी कुर्सी पर फॉर रेंट लिखवा दें। शहबाज शरीफ में इतनी हिम्मत नहीं थी कि हलफ उठाने के बाद ऑपोजिशन लीडर का खिताब भी सुन लेते। छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनकी ख्वाहिश होती है तो कोई एयरफोर्स यूनिफॉर्म में, कोई फौजी यूनिफॉर्म में। आज माशाल्लाह पुलिस यूनिफॉर्म में आ गए जनाब परेड देने के लिए। चीफ मिनिस्टर साहब, सर ये क्या हो रहा है मुल्क में? हम लोग क्या मजाक बना रहे हैं यहाँ पे? फॉर्म 47 का वजीर आजम जनाब स्पीकर, मैं कहूँगा कि वो रेंट अप प्राइम मिनिस्टर कुर्सी पे कर ले फॉर रेंट। इधर रेंटल प्राइम मिनिस्टर आ जाएगा सर। सिर्फ हलफ उठाया, उसके बाद तकरीर की, उस पे इतनी जरूरत नहीं थी कि इसी जगह से तकरीर सुन लेता, कोई काम की बात वो करता। आबे का आवा बिगड़ा हुआ है, ये एक नॉन सीरियस गवर्नमेंट की लामत है। सऊदी अरब वाले बयान पर मेरी सरजनिश हुई। शेर अफजल मरवत बोले, बानी पीटीआई ने कहा बयान बेमौका दिया क्या। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी पर बानी को बताया कि मुस्लिम लीग नून को मेरे नाम पर कोई एतराज़ नहीं। शेर अफजल मरवत बोले, पीटीआई में कोई फॉरवर्ड ब्लॉक नहीं बन रहा। अली अमीन गंडापुर पर एतराज़ात की खबरें गलत हैं। बानी पीटीआई ने बोल दिया है कि कारकुनों की रिहाई तक मफामत का सवाल ही पैदा नहीं होता। खान साहब ने मेरे सऊदी अरब के हवाले से दिए गए बयान पे मेरी सरजनिश की और उन्होंने कहा कि जी ये बयान रिहाई पे मौका दिया गया जो नहीं देना चाहिए था, और मुझे नसीहत की। पब्लिक अकाउंट कमेटी का मैटर आया, उनको जो बताया गया था कि DMLN ने मेरे नॉमिनेशन के हवाले से ताबुजात का इज़हार किया था। जब मैंने ये बताया कि ये बात गलत पहुँचाई गई है, उन्होंने कहा कि ये बहुत अच्छा हुआ, किसी फॉरवर्ड ब्लॉक की खबरें नहीं है और ना गंडापुर साहब के हवाले से हमें इल्म है कि ताबुजात ये मफरूजों की बुनियाद पे हैं। खान साहब ने बबांग दहल कहा, किसी किस्म की मुफाहमत का सवाल पैदा नहीं होता है जब तक हमारे पॉलिटिकल प्रिजनर्स अंदर हैं। फैसल वाडा ने सेनेटर का हलफ उठा लिया। आपने पहले खिताब में कहा जो कुछ ऐवान में होता रहा अब नहीं होने देंगे, कानून बनाएंगे तो अमल भी कराएंगे, हम कानून की तशरीह करेंगे और करवाएंगे। भुट्टो को फांसी देने वाले का एहतसाब क्यों नहीं हुआ? रेकोडेक केस में अरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरेंगे? नस्ला टावर की मासूम बच्चों को बेघर कर दिया गया। आज ऐवान में पहला दिन है, किसी का नाम लेना मुनासिब नहीं समझता। यहाँ ऐसे लोग भी हैं जो चारों तरफ खेल रहे हैं, हमें ऐसे लोगों को बेनकाब करना पड़ेगा।
लॉ को हम बनाते हैं, हम ही इम्प्लीमेंट कराएंगे, डिफाइन भी हम करेंगे और समराइज भी अब हम ही करेंगे। ये नहीं हो सकता कि कोई सादिक और अमीन के सर्टिफिकेट इस ऐवान के बाहर हमें दे। ये पॉसिबल नहीं है चेयरमैन साहब। हमारे ही बनाए हुए कानून को अपने ऊपर इम्प्लीमेंट ना किए बगैर हम पे इम्प्लीमेंट कर दिया जाए। जब भुट्टो साहब को फांसी दी गई तो एहतसाब उसका क्यों नहीं हुआ जिसने फांसी चढ़ाई? 14 साल जरदारी साहब को कैद बामुशक्कत में रखा गया, कोई शवाहिद नहीं पेश हुए। नवाज शरीफ साहब को ब्लैक लॉ डिक्शनरी इजाद हो गई, उसके तहत किस कानून के तहत उनको नाअहल कर दिया गया? इमरान खान साहब की हुकूमत चल रही थी, चलती हुई हुकूमत हमारा काम था, मैं उस वक्त उस पार्टी का मिनिस्टर था। चलती हुई पार्टी के अंदर 12 बजे इतवार के दिन अदल और इंसाफ के दफ्तर खुल जाते। क्यों भाई? ये हमारा काम है सियासत करना, हम लेंगे देंगे समझाएंगे बुझाएंगे। उसके बाद पाबंद कर दिया गया कि आप नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस ले। ये हमारा काम था सर, ये इस आइन का इस असेंबलियों का काम है। हम क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, उनको मजबूर करके हटा दिया गया। 6 को 9 और 9 को 6 करना जब तक बंद नहीं होगा पाकिस्तान में, जो 65 साल से हो रहा है, तब तक पाकिस्तान नहीं ठीक हो सकता। अरबों डॉलर हमने नुकसान कर दिया रिकॉर्ड एक्ट के अंदर जजमेंट्स की वजह से। वो अरबों खरबों डॉलर का नुकसान कैसे भरा जाएगा? हम यहाँ 6 साल नहीं 60 साल मजीद भी लगा देंगे तो हम निज़ाम को नहीं बदलते, क्योंकि अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है। जब अदल का निज़ाम ही ठीक नहीं है तो फिर आप किस तरीके से मुल्क को आगे लेके चलेंगे? और अब बात करेंगे पाकिस्तान और न्यूजीलैंड का चौथा T20 आज लाहौर के कज़ाफ़ी स्टेडियम में खेला जाएगा। मैच के लिए शायकीन क्रिकेट की आमद जारी है। इस बारे में मजीद बताएंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर भट्टी। और न्यूजीलैंड में आज चौथा मैच है और लाहौर में ये जो है वो पहला मैच जो है वो खेला जा रहा है। इससे पहले रावलपिंडी स्टेडियम में जो है वो 3 मैच हो चुके हैं, जो कि दोनों टीमें यानी पाकिस्तान और न्यूजीलैंड एक मैच जीत चुकी हैं, जबकि एक जो है वो बारिश की नज़र हो गया और आज शायकीन की बड़ी तादाद जो है वो आना शुरू हो चुकी है। आज के मैच के मेहमान ख़ुसूसी जो है वो 130 यतीम और बेसहारा बच्चे हैं जिन्हें फ़र्स्ट क्लास इंक्लोजर में जो है वो बिठाया जाएगा। यहाँ सिक्योरिटी के खासे सख्त इंतजाम हैं, मुख्तलिफ दर्जाती सिक्योरिटी जो है उसके बाद शायकीन को यहाँ पहुँचने दिया जाता है। आखिरी मैच और 5वां मैच जो है वो परसों होगा हफ्ते के रोज़, और उसके लिए भी इंतजाम जो है वो कर लिए गए हैं। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी से न्यूजीलैंड क्रिकेट के चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर स्कॉट वेनिंग की मुलाकात। मीटिंग में पाक न्यूजीलैंड सीरीज़ और अगले बरस न्यूजीलैंड में क्रिकेट सीरीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान टीम चैंपियंस ट्रॉफी के बाद न्यूजीलैंड का दौरा करेगी। चेयरमैन PCB ने कहा कि कीवी खिलाड़ी हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हैं, उनका ख्याल रखना हमारी जिम्मेदारी है। स्कॉट वानक ने पाकिस्तान में शानदार इंतजामात को सराहा और चेयरमैन PCB का शुक्रिया अदा किया। एक्सपो सेंटर लाहौर में सच के आई स्पोर्ट्स गेम्स गैलेक्सी फेस्टिवल। नौजवानों ने पबजी, फीफा और टेकनेट जैसे मकबूल गेम्स में बेपनाह दिलचस्पी दिखाई। इवेंट पाकिस्तान का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स चैनल ए स्पोर्ट्स और ARY ज़ैब बराह रास्त नशर कर रहा है। अलमास खान की रिपोर्ट। एक्सपो सेंटर लाहौर में सजने वाले ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल में मुल्क भर से क्वालिफाई होकर आने वाले नौजवानों में ऑनलाइन गेम्स के मुकाबले हुए। शुरू से ही शौक था कि गेमिंग साइड पर जाऊं और ई स्पोर्ट्स वाली साइड पर जाऊं, तो बस अपना वही जर्नी कंटिन्यू कर रहा हूँ। जब हमने देखा अरसलान ऐश जैसे प्लेयर निकले, फिर आतिफ भट्ट जैसे बड़े बड़े प्लेयर्स ने बाहर जाकर अपना नाम बनाया, तो उनसे इंस्पायर होकर हमने भी गेम खेलना शुरू किया। पाकिस्तान के सबसे बड़े ई स्पोर्ट्स फेस्टिवल का आगाज ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन से 1 माह कबल ही हो गया था। क्वालिफाई होकर आने वाले खिलाड़ी लाहौर एक्सपो सेंटर पहुँच गए। फेस्टिवल के ऑर्गेनाइजर फखरे आलम कहते हैं कि ये गेम नहीं जुनून है। ई स्पोर्ट्स जो है वो एक इज वन ऑफ द फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रीज इन द वर्ल्ड। ये जेन जी से आगे की जनरेशन जा चुकी है। इनके साथ कनेक्ट करने के लिए इनको समझना और इनको वो प्लेटफॉर्म देना कि जिस प्लेटफॉर्म पे वो आके अपने स्किल को आके शो कर सकें, वो बहुत जरूरी है। पाकिस्तान आर्मी के स्टाल पर तीर अंदाजी और फिजिकल फिटनेस के दिलचस्प मुकाबले हुए। इन मुकाबलों के फातिहीन को आर्मी स्कूल ऑफ फिजिकल ट्रेनिंग काकूल, स्पेशल सर्विस ग्रुप ट्रेनिंग सेंटर चराट, नेशनल काउंटर टेररिज्म सेंटर पब्बी और आर्मी मार्क्समैन यूनिट JLM में ट्रेनिंग का मौका दिया जाएगा। ई गेम्स और फिजिकल फिटनेस के मुकाबलों का फाइनल जुम्मा को होगा। कैमरामैन अहमद भट्ट के साथ अलमास अहमद खान, ARY न्यूज़ लाहौर। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। कराची 3 हट्टी के करीब बिजली और पानी की अदम फराहमी के खिलाफ इलाका मकीन एहतजाज कर रहे हैं। तफसीलात जानते हैं सलमान लोधी से। बताइए सलमान, क्या सूरत हाल है इस वक्त? देखें, जमात इस्लामी और इलाका मकीनों के लोगों की जानिब से ये एहतजाज किया जा रहा है। इलाका मकीनों का ये कहना है कि कुंडा माफियाओं के खिलाफ कार्रवाई ना करके जो बाकायदगी से बिल जमा करा रहे हैं उनको सजा दी जा रही है। लोड शेडिंग की सूरत में इलाका मकीनों का ये कहना है कि खेल इलेक्ट्रिक इंतजामिया अपना टेबला दुरुस्त करे। पुलिस मुजाहिदीन से मुज़ाकरात के लिए पहुंची ताकि रोड को क्लियर किया जा सके। 3 हट्टी और एतराफ एहतजाज से बदतरीन ट्रैफिक जाम हो गया है। शुक्रिया सलमान। कराची स्टील टाउन में गैस बंदिश पर कौमी शहराह पर धरने से सड़क बंद हो गई है। मजीद जाने के हमारे नुमाइंदे अली मोहम्मद शर से। अली, बताइएगा। जी बिल्कुल, ये स्टील मिल के रहायशी कॉलोनी है स्टील टाउन। इसके जो गैस है वो 4 रोज से बंद है, जिसके खिलाफ इलाका मकीन जो है स्टील टाउन के रहायशी, उन्होंने जिसमें मर्द, खवातीन और बच्चे भी शामिल हैं, उन्होंने कौमी शाहराह पर धरना देकर कौमी शाहराह को ब्लॉक कर दिया है, जिसके बाद से कौमी शाहराह मुकम्मल तौर पर बंद हो गया है और ठट्टा कराची को मिलाने वाली ये अहम सड़क बंद है, जिसके बाद से गाड़ियों की लंबी कतारें लगी हुई हैं। इनका कहना है कि शुक्रिया अली। पेशावर के गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में पालतू जानवरों की नुमाइश हुई। जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर के अलावा मुख्तलिफ इक़साम की पालतू बिल्लियां भी मेले में काबिल तवज्जो रहीं। शाजिया निसार की रिपोर्ट। गर्ल्स मेडिकल कॉलेज में पहली मर्तबा सजा पालतू जानवरों का मेला। तालिबात ने खूब एंजॉय किया। सब लोग अपने अपने पेट्स लाए हैं, कैट्स वगैरह है, डॉग्स वगैरह है। मैं तो ये डॉग लाया हूँ और वहाँ पर एक और डॉग है और कैट है दूसरी। मुख्तलिफ नस्ल और रंगों के पालतू जानवरों से खवातीन और बच्चों का प्यार काबिल दीद है। यहाँ पर लोगों को पेट्स के हवाले से इतनी अवेयरनेस नहीं है ना, तो जिस तरह ये शोज वगैरह होंगे तो इस तरह की एक्टिविटीज में लोगों को पता चलेगा इनकी वैक्सीन के बारे में, इनकी खुराक के बारे में, इंसानों की अपनी एहतियात के बारे में, क्योंकि ये चीजें नहीं होंगी घर बैठे तो पता नहीं लगता। पिट शो में जर्मन शेफर्ड, साइबेरियन हस्की, लैब्राडोर समेत मुख्तलिफ अक़साम की पालतू बिल्लियां भी बनी शुरा की तवज्जो का मरकज, जहां तालिबात ने मनपसंद जानवरों के साथ खूब सेल्फियां बनाई, तो वहीं रिवायती और चटपटे खानों को भी खूब एंजॉय किया। एंजॉय तो बहुत कर रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है और दिन भी बहुत अच्छा है, तो बहुत एंजॉयमेंट हो रही है। हम गोलगप्पे कर रहे हैं। चाइनीज फूड है, उसके अलावा फ्राइड आइटम्स हैं जो हमने स्पेशली यहाँ कॉलेज के स्टूडेंट्स के लिए बनाई। पिट शो का ताज साइबेरियन हस्की ने जीत कर अपने नाम कर लिया। इंतजामिया का कहना है कि मेले का मकसद पालतू जानवरों से प्यार और इस खूबसूरत मखलूक के बारे में शऊर उजागर करना है। कैमरामैन हयात खान के साथ शाजिया निसार, ARY न्यूज़ पेशावर। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। देखते रहिए ARY न्यूज़।